नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आज राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में ओलिव लाइव सर्जरी की वर्कशॉप का किया गया आयोजन। आपको बता दें, ओलिव सर्जरी स्पाइन सर्जरी की अपने आप में एक आधुनिक तकनीक है जिसमें डिस्क प्रॉब्लम, साठिका के दर्द वाले मरीजों का इलाज छोटे चीरे से किया जाता है। इस सर्जरी में अगर देखें तो देश विदेश में जाने जाने वाले डॉक्टर दीपक जोशी, जो कि फोटेज चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने आज मेदांता में कराई है पूरी सर्जरी। उनके दिशा निर्देशन में किया गया है यह काम। इस प्रोग्राम की व्यवस्था को अगर देखें तो मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता वर्मा द्वारा किया गया है। इस सर्जरी के दौरान अन्य कई स्पाइन स्पेशलिस्ट सर्जनों की रही है उपस्थिति, जिसमें उपस्थित लोगों में स्पाइन स्पेशलिस्ट चंदन अस्पताल डॉक्टर संदीप केसरवानी, एडिशनल प्रोफेसर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर शाह वली उल्लाह, स्पाइन सर्जन अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ से डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, इरा मेडिकल कॉलेज से स्पाइन सर्जन डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव के साथ साथ अन्य कई स्पाइन सर्जनों की रही है उपस्थिति। इस प्रोग्राम के उद्देश्य को अगर देखें तो इस तकनीक को सभी जनमानस तक पहुंचाने तथा सभी स्पाइन सर्जनों को अवगत कराने के लिए किया गया है काम। आइए दिखाते हैं अपने सहयोगी अनुज तिवारी के साथ लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। Have seen any deformity surgeries? No, sir. Any anterior surgeries? No, sir. You doctor, have you seen any of the anterior surgeries, deformity surgeries? Anterior surgery from deformity. You have seen deformity? What kind of deformity in your fracture treatment? Kyphosis. Kyphosis correction. You? Sir, one I have seen vertebral column surgery. Very good. You are senior resident, right? And what we have seen? Kyphotic. Why don't you call your colleagues and they can come and look at the olive surgery? You have, I think, considering all UG and postgraduate resident and senior resident, they are 70, right? So, क्यों बुलाते क्यों नहीं? Why don't you call them here? Dr. Shwetab has kept a very nice lunch also, and the after party also. So in this workshop, we are going to see one of the very special surgery, which is olive surgery. It's not very common, but it is picking up very fast. Like in Lucknow, all of us are doing this. Not like we have done 10 cases or 20 cases. We have done 1 or 2 cases, all of us. So that's why we have also come here to understand, so that we can become more confident and apply that surgery in more and more. Why it is important for you as a resident is because maybe one of you will become arthroplasty surgeon or you will become a scopy surgeon. But when you see an X-ray, you should not become blank in front of the patient. Oh, ये क्या है? ये तो मेरे को पता ही नहीं. So I think going to a conferences and seeing things is important, so that you understand what is happening in other specialties, and also rotating in other specialties is important, so that you can understand what your likings are. In BJ Medical College, as we used to rotate, we used to work with arthroplastic surgeon, scopy surgeon, spine surgeon, trauma surgeon, pediatric surgeon. So most of my colleagues who have not done senior residency. Most of my colleagues have not done senior residency. We have finished our MS and immediately within 3 to 6 months we have entered into subspecialty. I passed out in April. For 3 months I was in BJ, then 3 months I was there in KG, and in January I entered FNB. A lot of people ask, why have you not done senior residency? I simply answer, what is the need to do senior residency if you want to do only spine? Why not go ahead and do spine? Now I am not doing arthroplasty, Abhinav is not doing arthroscopy, Apur is not doing fracture fixation, Atish is not doing any K-wire. Then why you should go and
waste is three more years into K-wire fixation or tibia nilly. So these are the platforms. If whenever you get an opportunity, like if there is a spine workshop, there is a ankle and foot workshop, there is a plastic workshop, scopy workshop, please go and attend. So that at the end of 3 years you understand what you are going to do. Not after 3 years you are going to do 3 more years of residency and understand, okay, this is what I am going to do. Abhinav. अभी बहुत इंटरेस्ट तो पहले पता भी नहीं था कि उनकी रिलेटिव My sister. मेरे साथ की था, मेरे साथ की उन्होंने बोला कि मेरे भैया ने ऐसा एग्जाम दिया इसमें बहुत कम सीट होती है। मैंने ऐसा कौन सा एग्जाम होता है, उन्होंने फिर मुझसे बोला था कि मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं स्कोपी प्लास्टिक लूँ कि स्पाइन। फिर जब मैंने स्पाइन के केसेस देखे, मैं स्कोपी प्लास्टिक लेने वाला था। उसके बाद जब मैंने स्पाइन के केस देखा, मैंने तब लिया। तो कभी कभार इन सब जगह जाने से आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। I think Apur also talked to me before he gave FNB exam. नहीं, after before picking up the Before picking up the seat, he contacted me. Was क्या करना है? So these are the platforms. See what Deepak Joshi sir is speaking. I think IOCON, SECON, चाहे किसी भी कॉन में चले जाओ, कोई बंदा सर की तरह नहीं बताएगा या हम लोग की तरह नहीं बताते। बाकी सब बताते हैं, मैं ये तो मारा, मैंने वो तो मारा। Nobody is going to talk about their complication. Nobody is going to talk about the क्या problem facing. Nobody is going to talk about the beauty of the like how good it is. So these are the platforms where you can ask. So Ratish is a FNB from Sir Gangaram and one of the very prestigious institute. And he is into Lucknow. He is here in Lucknow. He is working with in Integral University Medical College as consultant spine surgeon. He is doing all 4 of us are doing exclusive spine work. We have done hundred of cases. Like you asked me now also for tibia nailing, I will close my eyes and I will do tibia nailing. I will do PFN. I will do whatever you want, because BJ Medical College we did not get any senior resident, so we were doing all the surgeries. But after doing FNP, I thought why not stick to one of the thing and justify or do that surgery in such a way that I can ask myself. How do you ask yourself whether you are a good surgeon or not? Can anyone answer? My boss used to say, let's see if anybody can say that. आप अपने आप को कैसे बोलते हो कि मैं अच्छा surgeon हूँ? One cannot be jack of all trades. My boss used to give only, he will ask me only one question, one liner. And he will say, if you say yes to that liner, then I will consider you are a good surgeon. Can anyone guess what one liner that might be? The follow-up. डॉक्टर साहब, आप मेदांता के डॉक्टर हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। आज कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, तो क्या है कॉन्फ्रेंस का, क्या रूप है और किस उद्देश्य से कॉन्फ्रेंस रखी है आपने? जी, आजकल गलत जीवन शैली के कारण कई पेशेंट्स में स्पाइन की प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोगों को बैक पेन, पीठ में दर्द, शाटिका का पेन होता है, डिस्क की प्रॉब्लम कई लोगों में देखने को आती है। तो कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं स्पाइन सर्जरी को लेकर के, काफ़ी रिस्की होता है, लोगों को पैरों में ताकत चली जाएगी, चल नहीं पाएंगे। तो जैसे समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, वैसे ही 2010 के बाद अब स्पाइन सर्जरी की फील्ड काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो गई है और अब हम मिनिमली इन्वेजिव, छोटी चेहरे वाली स्पाइन सर्जरी करते हैं और इस तकनीक से सभी प्रकार की स्पाइन की समस्याओं का इलाज संभव है। तो उसी सिलसिले में अब एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, उससे हम कहते हैं OLIF। ये है ओब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। इससे फायदा ये होता है कि इसमें हम पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम, शाटिका का प्रॉब्लम, हड्डी खिसक के आगे चली जाती है, इसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ऐसे कई अन्य तमाम स्पाइन के प्रॉब्लम को सबसे छोटी चीरे से हम ऑपरेट कर लेते हैं। इसमें हमें पीठ में मांसपेशियों पे कोई आघात नहीं करना होता और सिर्फ साइड से, यहाँ पेट के साइड से हम जा करके डिस्क की प्रॉब्लम और शाटिका प्रॉब्लम को हम हल कर लेते हैं। तो आज वेदांता में हम लोग एक लाइव सर्जरी करा रहे हैं, जहाँ पर हम प्रदेश के डॉक्टरों के साथ ये टेक्निक साझा कर रहे हैं और ये टेक्निक को हम लोग आगे और विकसित करेंगे। सर, ये जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, क्या ये नॉर्मल आदमी भी मतलब अफोर्ड कर पाएगा? इसकी कास्ट क्या होगी? इसके बारे में भी थोड़ा सा सर प्रकाश डालें इस बात पे। ये सर्जरी ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट पे होगी जितने की और सब तमाम सर्जरी होती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट नहीं होता। तो अब यही फायदा है कि हम अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट्स हम लगाते हैं वो उतने ही कॉस्ट पर है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है।
तो किस तरह के सर, क्या ये आयुष्मान कार्ड वाले या और भी कोई कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि खाली अभी? ये अस्पताल फिलहाल मेदांता में आयुष्मान कार्ड की सुविधा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मरीज सहूलियत ले सकते हैं उनके लिए यहाँ पे इलाज मुफ्त हो जाता है। अभी सर मरीजों के लिए क्या है, लास्ट में जो मरीजों के लिए क्या कहना है जो इस तरह के प्रॉब्लम में है लोग? जी, स्पाइन सर्जरी को लेकर मन में कई लोग के मन में भ्रांतियां हैं। हम तो अक्सर ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट बहुत डरते हैं कि कई लोगों ने कहा कि स्पाइन की सर्जरी मत कराओ, पैर में लकवा हो जाएगा, सक्सेस नहीं होता, फेल हो जाएगा। तो ये हो सकता है पहले की बातें होंगी, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे 2010 के बाद से एक बिल्कुल क्रांति सी आई है स्पाइन सर्जरी के फील्ड में, और स्पेशली अब जब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, मिनिमली स्पाइन सर्जरी जब आ गई है तो रिस्क बहुत कम हो गया। तो लोगों को सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। डेफिनेटली शुरुआत में इलाज स्पाइन के प्रॉब्लमों में कसरत, एक्सरसाइज, दवाइयां होती हैं, फिजियोथेरेपी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में इससे कोई फायदा नहीं होता और तकलीफ बढ़ती जाती है। तो उस स्थिति में अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरा इलाज, समुचित इलाज संभव है और इसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है। आजकल आप देख सकते हैं कि 95 से 97% तक इलाज सफल होता है। ठीक है सर, थैंक यू।